screen is visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Jai Hind. Say no. Okay, so yesterday we talked about the difference between primary market and secondary market, isn't it? Yes, sir. So those who could not take the screenshot of this, they can take it right now, and I would move further. See, secondary market means the stock exchange, correct? So now let us understand that what are the functions of the stock exchange and how actually the buying and selling of securities takes place. Let us understand the methodology of it. Under the Securities Contract Regulation Act 1956, the stock exchange has been defined. And this has been defined like this. So please, you have to write like the same words as I'm showing it here. Any body of individuals, whether incorporated or not, means it may be incorporated, it may not be incorporated, constituted for the purpose of assisting, regulating, or controlling. Assisting means the, the stock exchange will help you in finding out the buyer or the seller. If you are the seller, then it will help you to find out the buyer. If you are a buyer, then it will help you to find out the seller. Regulating, the transactions require certain rules and regulations. So what should be those rules and regulation? That is also to be understood. That is also one of the function of the stock exchange. Then controlling the business. It should not happen that whosoever, whatsoever, the way they want to deal into that should not happen. There is a controlling also of the stock exchange for buying and selling or dealing in securities. So that is the definition of the stock exchange. Now, what are the functions of the stock exchange? What actually they do? The first function is it provides liquidity and marketability to existing securities. The share which has been already shared, already sold in the market to the shareholders. Now, these shareholders, if they want to sell it further in the market, then it is there. It is to help them. So, it provides liquidity as well as marketability both to the existing securities. Correct? These two words are clear, liquidity and marketability. Liquidity means how easily it can be converted into cash form. Marketability means how easily you can convert or you can sell it in the market. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Please keep responding. Otherwise, you understand that right now I'm seeing the screen only where you are not visible. Second is pricing of the securities. I gave the other day also the example. Let's suppose two people are there, one is buyer, another is seller, and they are not knowing to each other. So how they will fix the price? You remember the barter system, how it used to happen. So it is, how much I value, how much the person may value. There is nothing, no, there is no mechanism to fix up the price if the stock exchange is not there. And now you are all knowing it, seeing it every day in the newspaper, every day on the television, that the price of the shares keep on rolling. Have you seen it? How many of you? In the newspaper Yes, also sir. the shares prices is shown. So that is called price of the day. उस particular day पे उस particular company के share के prices क्या हैं? तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज कौन फिक्स कर रहा?
और किस फोर्स से हो रहा? इट इज बीइंग डन बाय डिमांड एंड सप्लाई. Safety of transactions. See, I don't know the person who is in Tata, who is in Ranchi, Jamshedpur, or one is in Mumbai, or one is at Jaipur. So, how to deal with those people if I am not knowing them? The kind of document which they are giving me when the physical form shares used to be purchased and sold. I am not aware of those people. So whether they are cheating me or they are giving me the correct form, correct thing, we are not aware of it. We were not aware of it. But nowadays it is completely safe because everything is being done online, online on the screen or through Demat account. It contributes to economic growth. And you know that you understand that how does it form the capital formation? Small amount, just 10 rupees in my pocket may give, it can be given to a company which is producing, which is manufacturing something, and ultimately this will be called as economic growth. It will become capital formation for the country, right? So in this way, it is actually contributing to the economic growth. Spreading of equity cult. Cult means what? What is cult? Can someone? Group. Uh, yes, you can say, but in the correct Hindi word for cult is mat, panth, sampradaya. ना इनको बोलते हैं cult. ना एक system, a fashion in which a particular type of thing is being followed. That is called cult. You can call it even the, I don't mind if you call it culture. Uh, so that is cult. The equity cult is being spread by the stock exchange. Earlier, people were not in this idea, or they were not in this practice that they will keep their money, they will save their money and they will give it to someone who is investing in companies, making it capital formation, it will be used for the economic growth. This was not the culture. Earlier, people were afraid of putting their money into stock exchanges. Still, there are people who are afraid. And I'm sure that after today's class, you will not be. So it is actually spreading the this special kind of a culture among the people that let us now contribute to equity. Clear? Then it provides scope for speculation because there is no need to actually buy the share and sell it. Without buying the share, you can speculate and you can earn amount also. That is also possible. So it provides the scope for speculation. Please remember, speculation is not a negative word. हालांकि सट्टेबाजी जो इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको बहुत बदनाम कर दिया. स्पेकुलेशन भी एक तरह का अच्छा चीज है, इकोनॉमी के लिए ठीक है. ये बहुत खराब नहीं है अगर बहुत ज्यादा ना हो तो. गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन में फर्क है. Speculation, when you are doing it on certain information, based on some information, based on some research, and gambling is just by chance, by luck. There is no much skill involved. हालांकि जो करते हैं गैम्बलिंग वो भी काफी एक्सपर्ट लोग होते हैं. वो भी अपना, बट इसमें फेट जो है वो ज्यादा रोल प्ले करता है. स्पेकुलेशन में ज्यादा रोल प्ले करता है आपका स्किल. आप कैसे, कितना नॉलेज है आपको उस चीज के बारे में, उस पर डिपेंड करता है ना. जैसे आप क्रिकेट में जो स्पेकुलेशन करते हैं वो, हालांकि इट इज इलीगल, इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू, बट कुछ लीगल पार्ट भी तो है जो आप
गेम्स वगैरह खेलते हैं ना, आईपीएल के अलग अलग 11 और क्या क्या वो सब जो बनाते हैं, वो सब भी तो एक तरह का स्पेकुलेशन ही है। हाँ, तो स्टॉक मार्केट में भी स्पेकुलेशन का काफी स्कोप है। Now let us understand that how actually trading and settlement procedure happens. Before I talk about the today's system, means the electronic trading system, online screen system. Before that, how it was happening, I just want to give you a small introduction of that. से कंपनीज के शेयर खरीद लिए, है ना। किसी ने अगर गुरु फिल्म देखी हो तो उसमें सीन है ऐसे। हाँ, तो आपको उससे अच्छा आइडिया लग जाएगा। How many of you have seen movie Guru? Of Abhishek Bachchan? Come on, speak. नो सर। शायद सर मैंने देखी है। अच्छा, तो उसमें क्या होता था, एक हॉल जैसा है जहां पर जिस किसी को शेयर बेचना है, जैसे मान लो मेरे पास में टाटा का 10 शेयर है, तो हम पहुंच गए वहां उस हॉल में, और किसी के पास में मान लो 20 शेयर्स है किसी और कंपनी के, और कुछ को खरीदने भी है। तो जो सेलर बायर दोनों वहां पर आ गए, एक तरह का वो मंडी जैसा है। और वहां पर जैसे हमें जो शेयर बेचने हैं, है ना, तो हम अपने हाथ में वो शेयर या उस शेयर का नाम लेकर के, पीपल यूज टू शाउट, है ना, जोर जोर से वो लोग बोलते थे, हाँ टाटा का 10, टाटा का 10, हाँ इतने रुपए में, और रिलायंस का 50 शेयर इतने रुपए में। ऐसे सब लोग अलग अलग शाउट करते थे, एंड देन पीपल यूज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर कि अच्छा ठीक है इनके पास में, तो जो सबसे ज्यादा दाम, फिर खरीदने वाला अपनी बोली बोलता था, ऑक्शन टाइप का होता था। खरीदने वाला बोलता था अच्छा ठीक है हम इसको इतने में खरीद सकते हैं, तो वो फिर डील फाइनल हो जाती थी उन लोगों के बीच में। फिर धीरे धीरे इसमें चेंज आया, है ना। ये थोड़ा बड़ा अनसिविलाइज सा तरीका लगता था, चिल्लाना और ये सब करना। तो फिर पूरे बिल्डिंग को लैन के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया। फिर जिस जिसके पास में जितने शेयर हैं वो ब्रोकर के पास में गए, ब्रोकर ने अपने कंप्यूटर में उसको फीड, और जो बायर हैं, जो खरीदने वाले, उन लोगों ने भी अपनी डिमांड पुट कर दी, और फिर वो ब्रोकर एक दूसरे से मिल करके उसको खरीदते थे। फिर थोड़ा और चेंज आया, फिर स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होने लग गई। हाँ, उसी स्टॉक एक्सचेंज में बीएससी एनएससी जिसको आप बोलते हो, तो बड़ी सी बिल्डिंग अभी आप देख रहे थे स्क्रीन पर, उसमें लोग जा करके फिर उस शेयर के प्राइसेस स्क्रॉल करते रहते थे। हाँ? जैसे आप स्टेशन पे जाकर के देखते हो ना कि ट्रेन का आने का टाइम या एरोप्लेन के आने का टाइम आता रहता है, उसी तरह का वहां भी सिस्टम हुआ करता था। तो आपने देख लिया अच्छा ये शेयर इतने रुपए में बिक रहा है, ये शेयर इतने रुपए में बिक रहा है, जिसके पास बिक रहा है, जिस काउंटर नंबर पे, जिस जगह पे, वहां जाकर के आप शेयर खरीद सकते हैं। इस तरह से बेचने वाले भी अपनी इंफॉर्मेशन वहां पर डालते थे। ये तरीका आने लगे। फिर इसी को धीरे धीरे बहुत सारे अलग अलग जो स्टॉक एक्सचेंज थे, इंडिया में करीब 30-35 के आसपास स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे। अभी कितने स्टॉक एक्सचेंज है कोई बता सकता है आज की डेट सर में? सिर्फ दो। सर सिर्फ दो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी 50। अच्छा, और कोई बताए? 23। अरे वाह, कौन बोला 23? आशीष जैन। यस सर। अच्छा अमन, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट देयर आर टू? So I have heard about Bombay Stock Exchange and Nifty 50, so I thought that there might be only two. Okay, okay. So I'm just showing you for your updated information. This is the website of SEBI. This is the list of stock exchange. This has been arranged in alphabetical order. So the totals are 9.
अभी एट प्रेजेंट इस समय में 9 काम में है, जिसमें से एनएससी आईएफएससी लिमिटेड जो है वो 28 मई 2021 को बंद हो जाएगा। तो इसको घटा दे, अभी कितना बच गया? 8। एनएससी ये जो अभी अमन बोल रहा था, एनएससी उसका वेबसाइट ये है, ये परमानेंट है, ये रहेगा। फिर स्टॉक एक्सचेंज के अलावा कमोडिटी एक्सचेंज भी इंडिया में है। हा? वो कमोडिटी एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज को भी हम स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही ट्रीट करते हैं, बोलते हैं। ये दो हैं, मल्टी कमोडिटी और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। इसमें भी आजकल डीलिंग होती है। डेरिवेटिव के बारे में जिसको इंटरेस्ट हो वो जाकर के पढ़ सकता है, ऑप्शंस के बारे में जिसको इंटरेस्ट हो वो ये भी जान सकता है। फिर ये मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी मुंबई में ही हुआ करता था, अभी ये खत्म हो गया 15 सितंबर को। अब ये नहीं, ये अभी भी लिस्ट में है, इसको अपडेट कर देना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं किया। फिर इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, ये भी है, ये रहेगा। हाँ, इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज भी एक है, इसको आईएनएक्स भी बोलते हैं, ये 28 दिसंबर 2020 को खत्म हो जाएगा। 28 दिसंबर, ये अभी जो आने वाला है ना, अभी नवंबर चल रहा है, 28 दिसंबर को ये भी खत्म हो जाएगा। हाँ, एक कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज है, ये परमानेंट है, ये रहेगा, बीएसई रहेगा। अब बताओ कितने रहेंगे? सर एक निफ्टी तुम्हारे 50 अगर, है। नहीं बेटा, वो इंडेक्स है, निफ्टी 50 स्टॉक एक्सचेंज नहीं। निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स बनता है उसको निफ्टी, नेशनल का एन और 50 यानी 50 मेजर कंपनीज जो है उनका इंडेक्स बनाता है, वो है निफ्टी। और सेंसेक्स जो है वो बीएससी बनाता है। तो ये ऐसे, यही मेन स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, बीएससी, जिसको दलाल स्ट्रीट में है। पीजे टावर जो लंबा सा दिखता है वही पीजे टावर, उसी को बोलते हैं। ठीक है, अभी कितने स्टॉक एक्सचेंज रह गए? टोटल 9 है। उसमें से कितने बंद होने वाले हैं? 3 3 बोलो। 3 3 तो कितने बच गए? 6। 6 6। यही रह जाएंगे, है ना। तो अगर कोई पूछता है आपसे, अच्छा प्री बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आया, हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंज आर देयर एट प्रेजेंट इन इंडिया, तो आप कितना बोलोगे? 6 और 7? 7 7 7। और अगर बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन ये आया तो कितना बोलोगे? 6 6। 6। हाँ, गुड, समझ गए ना। तो इसका जो अभी इस समय में जो प्रोसीजर है वो कैसे करते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाँ, ये सब आपके बुक में दिया हुआ है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गो थ्रू इट, रीड इट। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम या स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या एडवांटेज है, वो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। I think you all of you are having the book open. So you can write it here. It ensures transparency. Next, you can write efficiency of information. Informations are passed properly.
Then there is efficiency of operation. Are you all doing the underline? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then large number of participants. More people can participate because now you need not to go to stock market. है ना, पुराने जमाने की तरह आपको जाके खरीदना नहीं है, आप घर बैठे खरीद सकते हैं। फिर एक सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना, आपको जो भी करना है सब आप एक ही जगह डीमैट अकाउंट बना करके सारा कुछ एक जगह कर सकते हैं। आप ऑप्शंस में डील कर सकते हैं, डेरिवेटिव में डील कर सकते हैं, कमोडिटीज में डील कर सकते हैं, स्टॉक यानी कि एक से शेयर्स, डिबेंचर्स, इवन म्यूचुअल फंड में भी आपको इन्वेस्ट करना हो, सब काम आप एक जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे ये स्टेप्स कैसे हैं, क्या है ट्रेडिंग और सेटलमेंट प्रोसीजर का स्टेप। तो स्टेप नंबर 1, कोई भी आदमी माने कि इन्वेस्टर, इफ यू विश टू बाय और सेल, अगर आप खरीदना या बेचना चाहते हैं, जाहिर सी बात है आप जब खरीदेंगे तो बेचेंगे भी, खरीद बेच करेंगे तभी तो आपको बेनिफिट होगा, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्टर्ड ब्रोकर को अप्रोच करना पड़ेगा या एक सब ब्रोकर को अप्रोच करना पड़ेगा, है ना। हम आपको ये पूरा डिटेल में समझाएंगे, बट ये थ्योरेटिकली इतना लंबा लग रहा है, बट एक्चुअली इट हैपेंस इन अ वेरी इजी वे। सो आप जब किसी जगह जा करके अपना ब्रोकर के साथ में अपने आप को अटैच करते हैं, when you get yourself registered as a buyer and a seller, then what are the things which you have to give? Your PAN number, date of birth, address, your educational qualification, occupation, and these details. Correct? Second is that the investor has to open, means you, if you are interested in buying the selling, you will have to open a demat account, right? और यू विल हैव टू ओपन अ बेनिफिशियल ओनर अकाउंट, एक ही बात है, इसको भी बोलते हैं। किससे? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। अब ये वर्ड आ गया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। देखो ये पूरा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इससे यस नो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो ही इज द Yes, बायर sir. and he is the seller. Suppose I am just telling you. This is the stock exchange. So buyer want to buy the shares and seller has to sell. So suppose buyer को सेल करना है कुछ नंबर ऑफ शेयर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, से HDFC का उसे 1000 शेयर दे खरीदने, और किस रेट पे खरीदना है, वो 10 रुपए में खरीदना चाहता है। तो ये इंफॉर्मेशन बायर के जो ब्रोकर होगा उसके पास जाएगी। इसी को बोलते हैं हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज की 2 डिपॉजिटरी है, एक NSDL है, दूसरा CDSL है। इसको ऑपरेट कौन करता है स्टॉक एक्सचेंज, इसी डिपॉजिटरी को? NSE, BSE के लिए CDSL है और NSE के लिए NSDL है। फिर इनका क्लियरिंग हाउस भी होता है जहां से रुपीस का लेन देन और सारे इंस्ट्रक्शंस दिए लिए जाएंगे। इसी तरह से सेलर का ब्रोकर भी होगा। अगर मान लो आपको कुछ खरीदना बेचना है, तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट यहाँ से उड़ करके गए और इसके पास डायरेक्ट बात कर ली, ऐसा नहीं होगा। आप अपने ब्रोकर को कांटेक्ट करोगे, ये अपने ब्रोकर को कांटेक्ट करेगा। अच्छा, अब ये जो ब्रोकर है, ये ब्रोकर दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं ना। इन्हीं ब्रोकर को 3 तरह के काम करने होते हैं, ट्रेडिंग मेंबर्स, क्लियरिंग मेंबर की तरह। इसी को हम माने इस बायर को एक
अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा, इस सेलर को भी अपना एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट रखना होगा। डीमैट अकाउंट क्या है? एक तरह का हिसाब किताब है जहां पे कितने शेयर आपके पास में आए, कितने शेयर आपके पास में गए, ये इनको रखना होगा। दूसरा, इसी डीमैट अकाउंट को किसी न किसी ट्रेडिंग अकाउंट माने कि किसी न किसी बैंक अकाउंट से आपको लिंक करना होगा। तो ये सेलर का क्लियरिंग अकाउंट हो सकता है, क्लियरिंग बैंक हो सकता है, और ये बायर का हो सकता है। इसका भी हम कुछ नाम रख सकते हैं। मान लो ये एक एसबीआई है, ये पंजाब नेशनल बैंक है, ऐसे दोनों अलग अलग हो सकता है, दोनों एक बैंक भी हो सकते हैं। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी और बायर, सेलर और ये स्टॉक एक्सचेंज, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? से यस नो? जितना हमने बोला है बस उतना समझ में आया? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Now, just for clearing it more, I would be just change this little bit. को एक बार में हम तुम्हें पूरा प्रोसेस पहले समझा देते हैं, फिर हम इधर आएंगे। हाँ, ये थोड़ा सा देखने में ऐसे लग रहा होगा, बट घबराना नहीं, एकदम आसान है समझना। बायर ने मान लो 20 शेयर खरीदने 1000 रुपए HDFC, तो इसने अपनी ये इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग मेंबर को दे दी, यानी कि अपने ब्रोकर को दे दी। ये बायर का ब्रोकर है बी, है ना? इसका हम कोई नाम रख लेते हैं, ज़ेरोधा, राइट? फिर इसी तरह से सेलर जिसको बेचना है वो भी अपने ब्रोकर को इंफॉर्मेशन देता होगा कि हम अपना 20 शेयर बेचना चाहते हैं, लेकिन हम 1000 रुपए में नहीं, 900 में बेचना चाहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन यहां पर आकर के ऑटोमेटिक ऑर्डर मशीन सिस्टम में मैच होती है। तो इसका ये जो ऑर्डर प्लेस हुआ और इसका जो सेलिंग का ऑर्डर आया, ये दोनों मैच नहीं कर रहा क्योंकि ये 900 में बेचना चाहता है। तो ये वेट करेंगे, अभी कुछ और लोग भी को देखेंगे। तो ऐसे करके कुछ और दूसरे लोग हो सकते हैं, कोई दूसरा सेलर हो सकता है जो 1000 रुपए में बेचने के लिए तैयार हो, या ऐसा हो सकता है एक सेलर ऐसा हो जिसके पास में 10 शेयर हो, दूसरा एक और है जिसके पास 5 है, तीसरा एक है जिसके पास में 5 है। तो तीनों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑर्डर मशीन सिस्टम में सारी की सारी मैच हो जाएगी, और यहाँ पे सब पता चल जाएगा कि अच्छा इसके 20 शेयर 10 5 5 करके खरीदे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। यहाँ तक समझ में आया? बाकी चीजें मत देखना, अभी जो जो मैं बता रहा हूं बस वही समझो। क्लियर है हुआ ये बात? ऑटोमेटिक ऑर्डर मशीन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ये समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब Yes, sir. जिस दिन ये ऑर्डर प्लेस करता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डे, यानी टी। हाँ, आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे है ना आज? Say yes, no. Yes, sir. Yes, sir. टुडे Yes, इज sir. Yes, हाँ sir. हाँ, हाँ। तो Yes, आज sir. टी हो गया। तो अच्छा, कल जो होगा उसको हम बोलेंगे T+1 डे, यानी वेंसडे। T+2 माने थर्सडे। ट्यूसडे आज है, वेंसडे थर्सडे, करेक्ट? मान लो वेंसडे को कोई हॉलीडे पड़ गया तो हमारा T+2 डे जो है वो फ्राइडे को हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. एवरेज ड्यू डेट पढ़ा होगा क्लास 11 में, तो उसी तरीका है ये। छुट्टी बीच में आ गई तो हमारा एक डे बढ़ जाएगा। तो टी डे क्या होता है, T+1 क्या होता है, T+2 क्या होता है, समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये बायर जो है जिसने ऑर्डर प्लेस किया 1 डे को, तो उसी दिन जैसे ये इंफॉर्मेशन इसके पास में आई तो ये तो तैयार है 20 शेयर 1000 रुपए में खरीदने के। और अगर यहां से ये इंफॉर्मेशन चली गई
कि हाँ ठीक है 20 शेयर हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट में। नॉर्मली तो ये भी ऑटोमेटिक ऑर्डर मशीन जो सिस्टम है उसको ये भी असेस कर ही पा रहा है, इसका ब्रोकर असेस कर पा रहा है, वो देख ले रहा है कि हाँ इतने शेयर इस रेट पर अवेलेबल हैं, तो उसके हिसाब से इसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो इसको हम टी डे बोलते हैं। इसी दिन हमारा इनका बायर का अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से यानी कि इसके बैंक अकाउंट से 20,000 रुपए कट करके क्लियरिंग मेंबर जो ब्रोकर का है उसके पास चले जाएंगे और यही 20,000 रुपया क्लियरिंग बैंक में चला जाएगा। हाँ, यही क्लियरिंग बैंक पहले वाले उसमें हमने यहाँ पे बनाया था। फिर यही अब इसी बीच में इसके पास में जो शेयर्स हैं वो शेयर्स अपने इसने ट्रांसफर कर दिए डीमैट अकाउंट से, यानी कि इसके सेलर के डीमैट अकाउंट से ट्रांसफर होकर के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि सेलर के ब्रोकर के अकाउंट में आ गया। और इसने क्या कर दिया, एक ऑलरेडी डेडिकेटेड पूल होता है हाँ सभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का, तो उसमें ये ट्रांसफर हो जाएगा T1 डे को, यानी कि ट्यूसडे को अगर आपने ऑर्डर किया है तो वेंसडे को यहाँ पे ट्रांसफर होकर के आ गया। और थर्सडे को मान लो छुट्टी नहीं है, थर्सडे को ये शेयर्स ट्रांसफर हो करके आ जाएंगे जो कि पूल अकाउंट है बी का, यानी कि इस बायर के ब्रोकर का। तो इस पूल से ट्रांसफर होकर के आएगा शेयर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट T2 डे को ही ये 20 शेयर्स इनके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। समझ में आ रही बात? ऑर्डर प्लेस हुआ, ऑर्डर प्लेस होकर के ऑटोमेटिक ऑर्डर मशीन में गया, इधर इनके पास में जो सेल का ऑर्डर है वो आया और ये दोनों यहां पर मैच हुआ। अगर मैच कर गया तो 20,000 रुपए इधर से निकल के आए, 20,000 रुपए ट्रेवल हुए। दूसरे दिन ब्रोकर से क्लियरिंग बैंक में आ गया, क्लियरिंग बैंक से जो सेलर का क्लियरिंग बैंक है उसके अकाउंट में चले गए पैसे और इसने रिलीज कर दिए शेयर को दूसरे दिन। तो इस तरह से ये हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये जो क्लियरिंग हाउस है यही एक्चुअली जो क्लियरिंग मेंबर के पास में ऑर्डर आया था, पैसे आए थे, ये एक्चुअली ट्रांजेक्शन नहीं करता, ये केवल इंफॉर्मेशन देने लेने का काम करता है। यही इन क्लियरिंग मेंबर को इंफॉर्मेशन देगा, क्लियरिंग इंफॉर्मेशन देगा। इस तरह से ट्रेडिंग कंप्लीट होती है। अब देखो जो तुम्हारे बुक में लिखा है, थर्ड पॉइंट क्या, हमने डीमैट अकाउंट खोल लिया बुक के हिसाब से। थर्ड पॉइंट, कैन समवन रीड इट? द इन्वेस्टर देन The investor then places an order with the broker to buy or sell shares. Clear instructions have to be given about the number of shares and the price at which the shares should be bought or sold. The brokers will then go ahead with the deal at बस रुक जाओ, बस रुक जाओ। आप लिंक कर पा रहे हो आप उससे ना, कैसे इन्वेस्टर ने ऑर्डर प्लेस किया, ब्रोकर या अपने अपने ब्रोकर को, क्या मुझे ये खरीदना है, मुझे ये बेचना है, दोनों चीज हो रही है, यस नो? बोलो। यहां पे ब्रोकर का मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से है, डीपी। यस नो? प्लीज बी क्विक इन रिस्पॉन्ड। Who was reading? अवंतिका? Yes, sir. हाँ, क्लियर है ये बात? Yes, sir. ओके। फिर ब्रोकर देन विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज, वो जो बीच वाला हमने पहले बताया था, एंड मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस अवेलेबल।
When the shares can be bought or sold at the price mentioned, it will be communicated to the broker's terminal. ये जो नीचे वाला क्लियरिंग हाउस के बारे में हमने बोला था, और तब it will be executed electronically, and then the broker will issue a trade confirmation slip to the investor कि हाँ ठीक है, आपका ये सब ऑनलाइन होता है, आपके मेल में आ जाएगा या आपके उस पे डेस्कटॉप पे जिस ऐप पे आप यूज कर रहे होंगे उस ऐप पे आ जाएगा, हाँ, ये ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप. Then, after the trade has been executed within 24 hours, the brokers will issue a contract note कि हम इस रेट पर, उसमें सारा डिटेल्स लिखा हुआ होगा, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड, द प्राइस, डेट, टाइम ऑफ डील, ब्रोकरेज चार्जेस जो भी लग रहे होंगे वो सब कुछ उसमें लिखा होगा. फिर now the investor has to deliver the shares sold or pay cash for the shares bought. This should be done immediately after receiving the contract note or before the day when the broker shall make payment or delivery of shares to the exchange. इसी को हम बोलते हैं पे इन डे. इसी दिन को हम बोलेंगे पे इन डे. करेक्ट. फिर कैश इज पेड. नेक्स्ट स्टेप, कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन पे इन डे विच इज बिफोर द T+2 डे. यानी T+1 डे को पे इन डे बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? T+1 डे. हाँ, ये T2 के पहले कोई भी दिन हो सकता है. टी डे भी हो सकता है पे इन डे, और पे इन डे T+1 भी हो सकता है. Which as the deal has to be settled and finalized on the T+2 day, माने Thursday हमारे केस में, the settlement cycle is on T+2 day on a rolling settlement basis. ये 2003 से ये रूल चेंज हो गया. पहले भी ये टाइम बहुत लंबा हुआ करता था, अभी ये T+2 डेज में फिनिश हो जाता है. पहले 15 डेज, 1 मंथ ऐसे होता था. ये हमने खरीद लिया तो उसमें स्पेकुलेशन इतना ज्यादा होता था, और ऐसे ही इसी सब कारण से स्कैम वगैरह हुआ है. कि अगर आप लोगों ने वो वेब सीरीज देखी हो हर्षद मेहता वाली, तो आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ अभी. Then on the T+2 day, the exchange will deliver the share or make payment to other broker. That is called the payout day. उसको हम payout day बोलते हैं. Payout day T+2 day को होता है. Pay in day T+2 day के पहले वाला कोई भी दिन हो सकता है. T day भी हो सकता है, T+1 day भी हो सकता है. And then the broker can make delivery of shares in demat account from directly to the investors डीमैट अकाउंट से इसके अकाउंट में आ जाएंगे. करेक्ट. तो दिस इज द सेटलमेंट प्रोसीजर. ये 10 पॉइंट आप बुक में खोल करके ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहो तो, और वो 10 पॉइंट को आप इस डायग्राम में कनेक्ट करोगे तो आपको फट से समझ आ जाएगा. And there are a lot of videos also available online to understand the entire procedure of trading and settlement. Don't see the cheap type of videos. बहुत सारे कुछ कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी है. तो मेरे समझ से आपको सबको ये क्लियर हो गया होगा. If still you have queries, tomorrow you can ask. Any question you want to ask? No? Okay, then I would say thanks to all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.